Morning, kids. Let's start with your fifth lesson, forms of business organization. We can say hardly 1 point is left, तो today we'll discuss the same और फिर ये lesson over हो जाता है. चलिए देखते हैं इस topic का last वाला point, that is MNC. MNC stands for multinational corporation. Okay, let's start with it. Exactly what is MNC? Yeah, what is multinational company? Now do one thing, guys. Come on, page number 103. A multinational company is a business organization that operates in many different countries at the same time. If we talk about MNC, guys, so the first feature of it is the particular business is operates in many countries at a time. Okay, means MNC is a business, a multinational corporation is a type of business which operates at a time in n number of countries, in many countries. For example, in other words, it's a company that has a business activities in more than one country. In other words, the company which has business in more than one country. More than one country. If we'll talk about MNCs, guys, so as I told you, the same business is operates in many countries at a time. एक टाइम पे ये कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा होता है. प्लस द कंपनी विच हैज बिजनेस मोर देन वन कंट्री, इस कंपनी का बिजनेस होता है एक कंट्री में नहीं होता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में लोकेटेड और सिचुएटेड होता है. अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ facilities and other assets in at least one country other than its home country. Such companies have offices or factories in different countries and usually have a centralized head office from where they coordinate global management. Yes, if we talk about these type of companies, so they are having one head office. They are having one head office in home country and branches, we can say outlets in some other countries. तो ये हो जाती है मेरी MNC की एक छोटी सी डेफिनेशन कि MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, जो लोकेटेड फॉर एग्जांपल इंडिया में है लेकिन इसकी ब्रांचेस अब्रॉड में कहीं पर भी कितनी भी कंट्रीज में हो सकती है. मल्टीनेशनल कंपनी एक साथ बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट की जा सकती है या हम कर सकते हैं. Now let's have a look toward some examples of multinational corporations in India, which is given in your text, that is Tata, Infosys and Bata. If we talk about Tata, Bata, Infosys and all, so these are the example of MNCs. इंडिया की MNCs की अगर बात करें और भी बहुत सारे हैं, पर फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 3 दिए गए हैं, बाटा, टाटा एंड इन्फोसिस. ये तीनों की क्या है कि इंडिया में इनकी वी कैन से होम कंट्री है या अदर कंट्रीज में भी इनकी बहुत सारी ब्रांचेज अवेलेबल है. ठीक है, ये हो जाती है हमारी पर्टिकुलर MNCs. नाउ लेट्स डू वन थिंग, गाइस. लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ MNC. Features of MNC. Let's start with it. Exactly what are the features of MNC? So, huge assets and turnover. The first one is huge assets and turnover. Yes, guys. MNC is operating on a global basis. They have huge physical and financial assets. This also results in huge turnover, we can say sales of MNCs. In fact, in terms of assets and turnover, many MNCs are bigger than national economies of several countries. As I told you guys that MNCs are having, we can say, head office in one country and branches in other states, in other countries, so that they are having financial support
या वी कैन से they are having manpower, very good amount of manpower and very good amount of finance, because they are running या they are operating their business on global level. अगर मैं पहला फीचर देख लेती हूँ एमएनसीज का, वो हो जाता है ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर. टर्नओवर क्या होता है? साल भर में हम कितना बिजनेस कर पाते हैं, कितना प्रॉफिट या कितने टारगेट्स अचीव करते हैं, उसे हम बोल देते हैं टर्नओवर. एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टीज. क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमएनसीज का हेड ऑफिस एक कंट्री में होगा और उसकी ब्रांचेस अदर कंट्रीज में होगी, जिसकी वजह से इनमें फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत होता है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंस भी बहुत क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके पास होता है, क्योंकि ये लोग अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे कर रहे होते हैं. ग्लोबल मतलब कि क्या? थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है. यही बन जाता है इसका फर्स्ट फीचर. चलिए दूसरा फीचर इसी का चेकआउट करते हैं. द सेकेंड वन इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस. MNCs have production and marketing operations in several countries, operating through a network of branches, subsidiaries, and affiliates to host country. Yes, international operations. As I told you that MNCs are having, we can say, head office in one country, and they are operating the same from n number of countries, yeah, from different countries, so that they are running, yeah, they are operating their business on international level, yeah, we can say throughout the globe. क्योंकि एमएनसीज का बिजनेस होता है एक कंट्री में नहीं होता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में वी कैन से स्प्रेड हुआ होता है, इसीलिए इनके बिजनेस के ऑपरेशंस भी क्या रहेंगे? पूरे इंडिया में, या वी कैन से इंटरनेशनल लेवल पे ये स्प्रेड हो चुके रहेंगे. इंडिया में, इंडिया के बाहर, एवरीवेयर थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में. नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. चलिए, द थर्ड वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. MNCs are characterized by unity of control. MNC controls activities of their branches in foreign countries through head office located in the home country. Management or branches operates within the policy framework of the parent corporation. Yes, centralized control के अंदर क्या होता है कि it's okay, the company is having n number of branches in n number of countries, but still the centralized control is in is in the hands of home country या home town, या we can say head office. इस पर्टिकुलर एमएनसीज की ब्रांचेस बहुत तरफ स्प्रेड होती है, पर इसको जो फाइनल कंट्रोल होता है वो सिर्फ होम कंट्री बोलिए या हेड ऑफिस से ही किया जाता है. नेक्स्ट, माइटी इकोनॉमिक पावर. MNCs are powerful economic entities. They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisitions of company in host countries. चलिए, mergers and acquisitions. Yes, if we'll talk about mighty economic power, तो mighty economic power means what? कि the MNCs are continuously change. We can say they are changing the, we can say, companies by merging and by acquisition. ये लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए नई नई एसेट्स परचेज करते हैं. मर्जर मतलब कि क्या? दो कंपनीज दे आर कमिंग टुगेदर एंड देन दे आर फॉर्मिंग अनदर कंपनी. या तो वो लोग नए नए बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, परचेज करते हैं, या वी कैन से एक दो कंपनी साथ में इकट्ठे होकर काम करती है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका इकोनॉमिक पावर डे बाय डे द पर्टिकुलर थिंग इज इंक्रीजिंग, वो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं. ये होता है इसका अगला फीचर. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. एडवांस्ड sophisticated technology. चलिए स्टार्ट करते हैं. Generally, MNCs has advanced and sophisticated technology, and it's at its command. It employs capital-intensive technology in manufacturing and marketing. Yes, guys. As I told you that they are running their business on large scale, as they are having n number of branches in abroad countries also, in hometown and in
we can say other countries also, so that they are using advanced and sophisticated techniques and technologies which will help to reduce their time, energy, and which will result in saving their money. आइए अब देखते हैं कि एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज क्या होती है। क्योंकि ये बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में, ये किसी एक कंट्री में लोकेटेड नहीं है, इनकी ब्रांचेस और भी बहुत सारी कंट्रीज में लोकेटेड है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इनके पास में पैसा भी बहुत सारा होता है, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, इसीलिए ये रैपिडली इन एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करके अपने बिजनेस की ग्रोथ, डेवलपमेंट या एक्सपांशन डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। चलिए लास्ट फीचर चेकआउट करते हैं इसका, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। MNC employs professionally trained managers to handle huge funds, advanced technologies, and international business operations. Yes, of course, that is a international business. International business plus huge capital, yeah, we can say advanced techniques. Okay guys, if we'll talk about management, so usually in MNCs qualified and professional staffs are hired. Why? Because it is an international business, that's why smart candidates are needed over here. Next, as I told you that they are running their business with huge capital, a large amount of funds, so that qualified staff should be there to handle, manage, and tackle the overall fund requirement, yeah, we can say capital requirement of company. Next, advanced techniques. They have to use and upgrade advanced techniques day by day. That's why professional management या professional staff is needed. लास्ट फीचर अगर मैं देखती हूँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट में, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ पे कैपिटल या फंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, प्लस उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजीज को फेस ऑन करना होता है, इसीलिए यहाँ पे लगने वाला स्टाफ भी कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वी कैन से एजुकेटेड और प्रोफेशनल होना चाहिए, जो हर एक प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करे, मैनेज करे और टैकल कर ले। चलिए ये तो थे मेरे कुछ फीचर्स ऑफ एमएनसी। लेट्स स्टार्ट विथ मेरिट्स। मेरिट्स मतलब ओके, मेरिट्स बन जाते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके गुड पॉइंट्स, आपके एडवांटेजेस। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वी कैन से MNCs. The first one is employment generation. MNCs create large-scale employment opportunities in host countries. This is a big advantage of MNCs for countries where there is a lots of unemployment. Yes, अगर हमने इको का 8th लेसन कवर अप कर लिया है तो हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एजुकेटेड यूथ और बहुत सारी चीज़ें, ब्ला ब्ला थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, विद द हेल्प ऑफ MNCs, एज आई टोल्ड यू, वन बिजनेस इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन n नंबर ऑफ कंट्रीज, होम कंट्री में भी और अदर ब्रांचेस वाली कंट्रीज में भी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। सिर्फ एक कंट्री में नहीं, बल्कि जितनी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस है सभी को काम मिल जाता है। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, चलिए देखते हैं कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल में क्या आ जाएगा। MNCs bring in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. This inflow of capital will bring much needed boost to growth for domestic country. Yes, as I told you that MNCs are carrying or they are operating their business in different countries, so that inflow of foreign capital is greater as compared to other, we can say, companies, and this is the main reason which will we can say foreign currencies या foreign inflow will result in expansion, growth and development of that particular country and that particular business. क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंट्रीज इजीली ग्रो कर पाती है, उनके पास में पैसे ज़्यादा होते हैं या हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सेट होती है। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस में क्या हो जाएगा. MNCs are in a position to utilize idle physical and human resource of the host country properly because of their advanced technical knowledge. This results in an increase in the national income of the host country. Yes, over here, if we'll talk about home country, yeah, we can say head office. So they are using the resources in an appropriate manner. Yeah, allocation of resources is very good in home countries. This will result in expansion and development. यहाँ पे क्या होता है कि होम कंट्रीज में चीज़ों का यूटिलाइजेशन उनको यूज़ करना बहुत ही प्रॉपर वे में होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होना निश्चित है. नेक्स्ट, टेक्निकल डेवलपमेंट. MNCs carry the merits of technical development of host countries. In fact, MNCs are a vehicle to transfer of technical development from one country to another. Poor country also begin to develop technical after hosting MNCs. Yes, technical development. As I told you, the particular business is operated through, we can say, different countries, so that it is very easy to transfer technologies from one country to another country, and the same will result in growth and development of, we can say, home country, host country and other countries. टेक्निकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये पर्टिकुलर MNCs डिफरेंट कंट्रीज में भी बिजनेस करता है, जिसकी वजह से बाहर की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती है. इजीली हम बाहर के टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली ग्रो होती चलती है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. MNCs employ latest management techniques. People employed by MNCs do a lot of research and in management. In a way, they help to professionalize management along with the latest lines of management theory and practices. This leads to managerial development in host countries. Yes, management. Yes, guys, management plays very important role in growth and development of particular country. अगर मैं बात करती हूँ कि प्रोफेशनल स्टाफ को हायर किया जाता है, तो प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करने के पीछे रीज़न क्या है कि वो अच्छे से सिचुएशंस को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे या बराबर से हैंडल करेंगे. यही हो जाती है मैनेजरियल डेवलपमेंट. अगर आप एक प्रोफेशनल और अच्छा मैनेजर हायर करते हो तो बट ऑफकोर्स आपकी कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज होती है. नेक्स्ट, एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज. एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज. मोनोपोली क्या होती है? मोनो मतलब सिंगर, पॉली मतलब सेलर. जहां पे एक अकेला सेलर होता है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को फिनिश किया जाता है. चलिए देखते हैं कैसे. द कंट्री ऑफ MNC लीड्स टू द कंपटीशन इन होस्ट कंट्रीज. लोकल मोनोपोलीज ऑफ होस्ट कंट्रीज ईदर start improving their products or reduce their prices. Thus, MNCs put an end to exploit practices of local monopolies. As a matter of fact, MNCs compel domestic companies to improve their efficiencies and quality. मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि एज ये पर्टिकुलर बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में एट अ टाइम ऑपरेट है, तो जितने भी मोनोपोलीज थे, जैसे कि वो हायर प्राइजेस चार्ज कर रहे थे या वी कैन से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पा रहे थे, इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या आ जाता है, एक कंपटीशन सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बट ऑफ कोर्स दे हैव टू रिड्यूस देयर प्राइजेस एंड इम्प्रूविंग, या we can say improve the quality of their goods and services. Seventh one, improvement in standard of living. Improvement in standard of living. Yes, of course, as we can say इंडिया में अब्रॉड की भी चीज़ें परचेज और सेल की जाएगी, तो बट ऑफ कोर्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विल इंक्रीज. लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के टच में हैं, सो दैट हमें समझ में आता है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, लोगों को काम भी बहुत मिलता है, दूसरी कंट्रीज के साथ में काम करने के बाद में पैसा भी बहुत होता है, एंड बट ऑफ कोर्स they'll focus on standard of living, yeah, how to increase their living standards. The last one is promotion of international brotherhood and culture.
promotion of international brotherhood and culture. Yes, guys, if we are dealing, yeah, we are doing business with n number of different countries, तो बट ऑफ कोर्स उन आपके और उस कंट्री के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे. जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, झगड़े थे, वो सारे अब दूर हो जाते हैं. और इन चीज़ों की वजह से क्या रहेगा, आपका और उस पर्टिकुलर कंट्री का एक वी कैन से गुड रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम लोग बोलते हैं भाईचारा, या वी कैन से आपस में अच्छे से रहना, प्लस कल्चर एंड एथिक्स, हम सारी चीज़ों को समझ पाते हैं. फिर ये हो जाता है मेरे कुछ मेरिट्स ऑफ एमएनसीज. चलिए इस लेसन के लास्ट पॉइंट की तरफ मूव अप करते हैं. सिर्फ डीमेरिट्स बचे हैं और हमारा ये लेसन फिनिश हो जाता है. तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डीमेरिट्स की तरफ से स्टार्ट करते हैं. Demerits of MNCs. The first one is danger for domestic industries. चलिए पहला वाला पॉइंट इसका डीमेरिट देखते हैं कि द सेम इज डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. यस ऑफ कोर्स गाइस, इट विल वी कैन से it is danger for domestic industries. Why? Because you are dealing with abroad countries. या जितने भी बड़े बड़े businessmen है, only they can deal with abroad countries and all. And those who are small businessmen, they are not, we can say, they are not taking part in that particular MNCs. और उसका रिजल्ट होता है कि ये बहुत सारे लोगों पे अफेक्ट हो जाता है. जितने भी लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, बिजनेसेस बड़े बड़े हैं, वो इन एमएनसीज में पार्ट ले सकते हैं. पर जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, वो सारी लॉस में चली जाती है एमएनसीज की वजह से. ये होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. चलिए द नेक्स्ट इज repatriation of profits means sending profits to their countries. चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि sending profits to their countries. चलिए बात करते हैं बच्चों मैकडी की, डोमिनोज की, या और भी बहुत सारे अदर इसकी. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे मैकडी की, तो मैकडी इंडिया का ब्रांड नहीं है, या इंडियन इंडस्ट्री नहीं है. ये है एब्रॉड इंडस्ट्री, जिसका क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है. अगर हम यहाँ से पूना भी जाते हैं तो हमें 2-3 तो चाकन में दिख जाएगा, भोसरी में, मोशी में, पुणे में तो बहुत सारे आउटलेट्स है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज हमारे इंडिया में पैसा अर्न कर रही है. बट ऑन द अदर हैंड साइड, आई एम सॉरी, दे आर सेंडिंग द सेम प्रॉफिट टू देयर कंट्रीज. वो अर्न यहाँ पे कर रहे हैं, बट उसका प्रॉफिट वो अपनी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हमारे इंडिया में वड़ा पाव वाले हैं, या जितने भी अदर बिजनेसमैन हैं जो फूड इसमें डील करते हैं, उन सब पे अफेक्ट होता है. कि मैकडीज और इन चीज़ों की वजह से जो वी कैन से एजुकेटेड यूथ है, या जो यंग यूथ है, वो वहीं पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो जितना भी यंग यूथ रहेगा, तो इंस्टीड ऑफ हैविंग वड़ा पाव, वो लोग मैकडी की तरफ स्विच करते हैं, और ये कंट्रीज उनसे अर्न किया हुआ प्रॉफिट अपनी होम कंट्रीज को बेचते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है. इंडिया या कोई भी और कंट्री ले लीजिए. चलिए नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस. इनिशियली MNCs help the government to country of the host country in a number of ways, and then gradually start interfering in political affairs of the host country. This and then an implicit danger to the independence of host country in the long run. If we talk about interference of government, so the host country is operating or managing the overall business situations of particular company, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है. पहले तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एंड लेटर ऑन इट स्टार्ट इंटरफेयरिंग. द नेक्स्ट इज disregard of national interest of the host country. Disregard of national interest of
host country. चलिए, MNCs invest in most profitable sector and disregard the national goals and priorities of the host country. They do not care for the development of backward regions, and they never care to solve chronic problems of the host country like unemployment and poverty. Yes, disregard of national interest and host countries क्या होता है कि over here everyone just wanted to, we can say, invest in huge companies या in MNCs, and they are not care about poverty, poor peoples and unemployment, which will result in pushing or forcing unemployment in countries. अगर मैं बात करती हूँ डिसरिगार्ड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की, यहाँ पे ये हो जाता है कि कंट्रीज क्या करती है, जैसे कि जिस किसी के पास में बहुत सारे पैसे, तो वो सिर्फ खुद की प्रोग्रेस सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरी वजह से कितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। वो बंदा सिर्फ यही सोचता है कि मैंने अब्रॉड कंट्री के साथ में डीलिंग करनी है, प्रॉफिट अचीव करना है और ग्रो कर लेना है, बाकियों से मुझे कोई लेना देना ही नहीं। चलिए फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं इसी का, मिस यूज ऑफ माइटी स्टेटस। मिसयूज ऑफ mighty status. MNCs are powerful economic entities. They can afford to bear losses for a long while in the hope of earning huge profit. They have ended local competition and achieved monopoly in a greater extent. This may be the unfair strategy of MNCs to wipe off local competitors from the host country. Misuse of mighty status के अंदर क्या आता है कि इनके पास इतना पैसा होता है कि ये स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को वी कैन से काउंट ही नहीं करते हैं। ये हो जाता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। MNCs tend to use natural resources of the host country carelessly. Okay, they are using natural resources carelessly. They are not, we can say, ये लोग उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है कि कितना नेचर का नुकसान हो रहा है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट अचीव करना होता है। सेवेंथ वन, सेल्फिश प्रमोशन एंड अलायंस कल्चर। सेल्फिश प्रमोशन, यहाँ पे ये लोग क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं कि सिर्फ खुद का प्रॉफिट देखना है, बाकियों का नहीं। पूरी नेचर का नुकसान हो जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का हो जाए, they are not caring about it. And the last point is exploitation of people. The MNCs join hands with big business houses of the host country and merge as powerful monopolies. This leads to concentration of economic power only in few hands. Gradually, these monopolies make it their birthright to exploit poor people. Yes, यहाँ पे क्या हो जाता है कि poor peoples या those who are unable to, we can say, compete with them, इन सभी लोगों को क्या हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो और बढ़ती चली जाती है। इट्स ओके कि कुछ को जॉब मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे मेरा वी कैन से फिफ्थ लेसन भी फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिक्स्थ वाला स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।